Amid escalating tensions in the Middle East, Times of Israel has reported a drone attack targeting Israeli Prime Minister Netanyahu's residence. Both Prime Minister Netanyahu and his wife Sarah Netanyahu were not at home and no injuries have been reported so far. This comes after Israeli forces eliminated the Hamas chief Yahya Sinwar on Wednesday, leading to Hamas releasing its first official statement where its leader Khalil al-Hayya has confirmed the death of terror group's leader Yahya Sinwar in Gaza. The Hamas leader has hailed Sinwar and said that Sinwar's death will only serve to strengthen the terror group and vowed that the occupiers will soon regret killing the Hamas chief. And soon after that promise coming in from the other possible prospective Hamas successor, we are now learning that there has been a drone attack at the Israeli Prime Minister's residence in Caesarea. Where is Caesarea? It is between Tel Aviv and Haifa. And remember, this was a drone that was sent out from Lebanon. It's been shot down by the IDF. Iran now has also joined the conflict by mourning the death of Yahya Sinwar and said that his death will strengthen the spirit of resistance. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has indicated that this is not the end of the war in Gaza, despite the killing of Sinwar. Meanwhile, the United States is trying to act as a broker for a ceasefire as there are growing calls to pause the war. We'll keep bringing you more inputs. But as of now, we can tell you that there has been a confirmation coming in from the Prime Minister's Office of Israel, where the PMO statement confirms that there has been a drone attack as far as Prime Minister Netanyahu's residence in Caesarea is concerned. Now, remember, this is a private residence. Fortunately, no casualties have been reported so far, as has been also highlighted by that PMO statement. It also says that Prime Minister Netanyahu and his wife were not at the residence. Let's in fact quickly bring you some more inputs. All right, I'm joined by Arun Singh, who's joining us live from Caesarea. अरुण जी, क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? अभी क्या पता चल रहा है आपको? कोई भी कैजुअल्टीज हुई? कितने बजे ये अटैक हुआ था? क्या ये एक कॉन्फर्मेशन आया है कि ये ड्रोन लेबनान से ही आया था? देखिए, फिलहाल तो एक दावा यह भी किया जा रहा है कि ये ड्रोन ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह के जरिए ही आया था, लेकिन ईरान ने कोशिश की बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने की। लेकिन इस वक्त मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सिजेरिया इलाके की तस्वीर है ये। यहाँ पर देखिए, पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, भारी संख्या में जांच एजेंसी के लोग हैं और जो लोग इजरायली डिफेंस फोर्स के हैं उनके साथ ही साथ खुफिया एजेंसी के लोग भी हैं, क्योंकि एक बड़ा खुफिया चूक का भी ये मामला है। आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, इन पुलिसकर्मियों के पीछे आपको बैरिकेडिंग दिखेगी, जो रेड और व्हाइट बैरिकेडिंग आपको दिख रही है, वो प्रधानमंत्री के घर की जो हॉलिडे होम है उसकी परमानेंट सुरक्षा व्यवस्था ही है। उसके पीछे आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और एसयूवीज दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों की जांच एजेंसियों की गाड़ियां हैं और उसके बाद एक पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके ठीक पीछे पर्दे लगे हुए, पूरा जो इलाका है उसको ढक दिया गया क्योंकि वहीं पर ड्रोन एक्सप्लोड किया। अब इजरायली डिफेंस फोर्स कह रहे हैं कि 100 मीटर दूर जो प्रधानमंत्री का हॉलिडे होम है उसके 100 मीटर दूर ये ड्रोन फटा है। लेकिन जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनसे हमने बात की और रिपोर्ट भी भेजी है, उनके मुताबिक प्रधानमंत्री का घर, चूंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग यहाँ पर बड़े लोग रहते हैं और बड़े फार्म हाउसेज हैं, बहुत ही महंगा इलाका है ये, वीवीआईपी यहाँ रहते हैं, तो ये बड़े बड़े घर हैं। उनका ये कहना है कि ये उनकी चारदीवारी के अंदर ये ड्रोन फटा है, यानी प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गया ये ड्रोन। 70 किलोमीटर लगभग समुद्र के ऊपर नीचे उड़ते हुए आया था, जिसकी वजह से जो इजरायली डिफेंस फोर्स के जो सिस्टम है, रडार सिस्टम है या इंटरसेप्ट करने का सिस्टम है, वो नाकाम हो गया था। 3 ड्रोन में से 2 उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, एक आ गया उनके घर। तो तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद है, किसी को इस पॉइंट के आगे जाने की इजाजत नहीं, अनुमति नहीं है। और उसके बाद जो बैरिकेडिंग है ये परमानेंट है। प्रधानमंत्री का चूंकि ये घर है, भले यहाँ कम आते हैं वो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था हमेशा पुख्ता रहती है। और आप उसके पीछे देख पाए, मैं देख पा रहा हूँ पानी के स्प्रिंकलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कैमरे में भी वो कैद हो जाए, गाड़ियां निकल रही हैं उनके घर से और पर्दे लगा करके पूरे घर को ढक दिया गया, क्योंकि अंदर जांचकर्ता जांच कर रहे हैं, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और लगातार आवाजाही सुरक्षा एजेंसियों की और खुफिया एजेंसियों की यहाँ चल रही है, इसलिए लिमिटेड एक्सेस है वहां पर। देखिए, आपको अगर स्प्रिंकलर्स दिखाई दे रहे हो तो जो ड्रोन गिरा था
जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका यह कहना है कि बहुत लाउड उन्होंने सुना है आवाज, और उसके बाद थोड़ी बहुत वहां आग भी लगी थी। असली हालात क्या है वो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। अरुण, हमारे साथ बने रहिए। In fact, I'd like to inform our viewers that CNN News 18 is one of those very few channels which are bringing you that live report from ground zero. As you can see, Arun Singh is in fact stationed outside Prime Minister Netanyahu's Caesarea residence, which is his holiday home. And remember, Caesarea has a very interesting position. It's a coastal town. It is located between Tel Aviv and Haifa. On that note, let me quickly go back to Arun. Arun, जो Caesarea की position है वो strategically अभी इजराइल के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन गई, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह वो ड्रोन उड़ के आया था और काफी लो हाइट पे उड़ा, इसीलिए जो डिफेंस सिस्टम्स थे वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। जरा हमें सिसेरिया की लोकेशन के बारे में बताइए। ये लेबनान से कितनी दूर है, ये ईरान से कितनी दूर है, और दूसरी बात ये टेल अवीव से कितना दूर है, और अभी वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है ग्राउंड लेवल पे? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि हाइफा और तेल अवीव दोनों के बीच में सिजेरिया लगभग है। तो ये जो इलाका है वो एकदम भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर फार्म हाउसेज हैं, और उसी में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी एक घर है। ये देखिए, यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, रोज जो लोग यहाँ पर आते जाते हैं, उनको भी बहुत ही पूछताछ के बाद, कड़ी सुरक्षा जांच के बाद अंदर जाने दिया जाए। जब तक उनकी आइडेंटिटी प्रूव नहीं होती तब तक उनको नहीं जाने दिया जाता अंदर। जहां तक आपने बात की, देखिए ये लेबनान से दूर तो तकरीबन 70-80 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो ड्रोन आजकल भेज रहा है वो बहुत ही लो हाइट से भेज रहा है, और उसको लेकर परेशान भी है इजरायल की सुरक्षा एजेंसियां। उन्हें समझ नहीं आ रहा है किस तरह से इसको टैकल करें, क्योंकि देखिए इनको नहीं अंदर नहीं जाने दिया गया। इस समय जांच चल रही है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बहुत सारे लोग अंदर हैं और मोसाद के बहुत सारे लोग अंदर हैं, इसलिए किसी भी बाहरी को फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है। जिनका घर है उनको भी कहा जा रहा है थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर आइएगा। जिस लोकेशन की बात कर रही थी, समुद्र के, चूंकि भूमध्य सागर के किनारे है, इसलिए ड्रोन समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए यहाँ तक आ जा रहे हैं। 3 बार इस पूरे इलाके में हमला हो चुका है। एक बार बिन्यामिना मिलिट्री बेस है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, लगभग 20 मिनट की दूरी पर होगा। वहां पर लंच के समय सैनिकों के लंच रूम के ऊपर आकर के एक ड्रोन फटा था, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। एक और ड्रोन जो था वो तेल अवीव से 12 किलोमीटर पहले हर्सिलिया इलाका जो है वहां पर जाके ओल्ड एज होम पर फटा। मैं वहां भी गया था, दोनों जगह मैं दौरा करके आ रहा हूं। तो ड्रोन जो है वो चिंता का सबब बने हुए हैं। ड्रोन की काट कैसे रखनी है वो इजरायली डिफेंस फोर्स या उनकी खुफिया एजेंसी वो पता नहीं लगा पा रही। इनके पास सिस्टम है। देखिए, मैं दोनों तरफ गया था, मैं गाजा के बॉर्डर पे गया, मैं लेबनान के बॉर्डर पे भी गया। इनके पास आयरन डोम सिस्टम है। जैसे ही कोई प्रोजेक्टाइल मिसाइल कोई भी लॉन्च होता है इनकी तरफ, इनके रडार उसको पकड़ते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं और हवा में उनको नष्ट कर देते हैं। मैंने कई बार देखा इसको, लेकिन चूंकि ड्रोन बहुत नीचे उड़ता है इसलिए उसको इंटरसेप्ट करने में बहुत मुश्किल आ रही है। हालांकि इस बार भी कह रहे हैं कि 3 ड्रोन में से 2 को इंटरसेप्ट करके हमने उनको नष्ट कर दिया, एक यहाँ पर हिट किया। लेकिन बड़ी बात जो है, यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये प्रधानमंत्री का घर है। प्रधानमंत्री के घर पे पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी होती है। अब इजरायल ये कह रहा है कि यहाँ पर वार प्लेन तैनात कर रहे हैं, यहाँ पर भूमध्य सागर में नेवी वारशिप भी तैनात कर रहे हैं, ताकि कोई भी प्रोजेक्टाइल अब आता है तो उसको नहीं आने दिया जाए। लेकिन जो एक तरह से बेइज्जती के हैं, मैं इसलिए बेइज्जती सबका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है इजरायल की, पूरी दुनिया में नाम है। लेकिन वो चुनौती और वो सवाल तो खड़े हो गए। और आपने जिस तरह बोला कि मतलब मोसाद की खुद की इंटेलिजेंस कलेक्टिंग कैपेबिलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। हमने आयरन डोम को भी देखा है किस तरह उन्होंने ईरान के पूरे अटैक को हैंडल किया था। तो ये काफ़ी चौंका देने वाला इंसिडेंट है जो ये ड्रोन अटैक हुआ है। पर आप वहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं जो सिक्योरिटी पर्सोनल वहाँ तैनात है, उनसे बात यदि आपने की और यदि उन्होंने आपको कोई भी सेंस दिया हो सिक्योरिटी का कि ये अटैक हुआ कैसे। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाया कि ड्रोन्स, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर हाउ दे आर द चेंजिंग फॉर्म ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी बिकॉज दे in fact very efficiently combine the new form of robotics. Is a face of precision strike technology. But when you talk about drones, how are they being now used as a mode of the new form of warfare, especially जब आप इजराइल की लड़ाई जो ना कि सिर्फ गाजा में देखी गई, अब लेबनान से भी जिस तरह का हम देख रहे हैं ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है कि इजराइल डिफेंस फोर्स के लोग होते हैं या पुलिस पर्सनल, वो बात नहीं करते। तो ये जो लोग हैं वो आपको बस दूर से देख सकते हैं, उनको वो बात नहीं करते क्योंकि उनका कोई सीनियर ऑफिसर जो है वो ही बात कर सकता है और वो यहाँ पर कोई नहीं, वो सब लोग अंदर हैं क्योंकि ये बड़ी घटना है। और इजराइल के इतिहास में प्रधानमंत्री के दहलीज तक, उनके घर की चारदीवारी तक कोई ड्रोन पहुंच जाए। अब सपोज करिए अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, कितनी बड़ी सनसनी हो जाती। वो तो जेरूसलम में है, इसलिए थोड़ा आज इजरायली डिफेंस फोर्सेज राहत की सांस ले पा रही हैं।